Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our new chapter in the series of ancient history through 500 MCQs. Now, prior to Buddhism, we have already completed the Indus Valley civilization, the Vedic age, as well as the Mahajanpad. So if you haven't watched these videos yet, you can go to the channel, you can go to the video section and watch those videos first. Now, लेट अस स्टार्ट टुडे आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बुद्धिज्म एंड ये वीडियो देखने के बाद यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस पर्टिकुलर वीडियो से ऑल द डाउट्स ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग बुद्धिज्म विल बी सॉल्व्ड एक्सक्लूसिवली. ओके, so let us start with our today's video. Now here is our first question: where was Gautam Buddha born? Now let me give you a brief idea about Buddha's life first, and then we will see all of the important information and we will solve the question. Now talking about Buddha's life. So his original name was Gautama. He was also known as Siddharth. Another name was Shakyamuni, and an other important name which has also been asked by the UPSC examination was Tathagat. ठीक है, Tathagat was also the name of Buddha. Now he was born in the year 563 BC at Lumbini. And where is this Lumbini? Lumbini is in Nepal, present day Nepal. Now the birth of Buddha, that he was born in Lumbini, this is supported by an inscription, that is the Rummi Dey inscription. ठीक है, Rummi Dey inscriptions tells us about the birth of the Buddha. Now he left the home at the age of 29, and it is believed that he has attained nirvana by the age of 35. Now this nirvana at the age of 35 was attained at Bodh Gaya. Now Bodh Gaya is in present day Bihar, and it is situated on the banks of river Niranjana. Now after attaining the enlightenment, now he went to Sarnath, where he delivered his first sermon. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं where did Buddha delivered his first sermon, it was in Sarnath, and it was known as Dharma Chakra Pravartana. That means turning the wheel. Okay. Now next thing is about the Mahaparinivarna. Now Mahaparinirvana, it means the death of Buddha, and the death of Buddha happened in Kushinagar. Now at the time of the death of Buddha, which republic was there, which Mahajanpad was there particularly? So it was the Malla Republic that used to rule at Kushinagar at that time. Okay, now these are some of the important aspects of the life of Buddha. Now all of these aspects of the Buddha's life, they were related to one kind of symbols. Okay, now these were related to some kind of symbols. Now we will also discuss the question on symbols. Let us now deal with the first question: where was Gautam Buddha born? Now he was obviously born in Lumbini, so C will be the answer. Rummi Dehi inscription, which is situated in present day Nepal, gives us the information about the birth of Buddha. Now बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में the Buddha attained enlightenment. He was also known by the name of Tathagat. This I've already told you. After attaining the enlightenment, he went to Sarnath, where he gave his first sermon, and this was known as the Dharmachakra Pravartan. This also I have told you. Next is the Kushinagar, which is the Mahaparinirvana. Okay, now this Mahaparinirvana is related to the death of Buddha. एंड मैंने जो सिंबल की बात बताई थी ना, तो दिस महापरिनिर्वाणा इज का सिंबल जो था वो स्तूपा था. ठीक है, स्तूपा में रेलिक्स थे. सो रेलिक्स से आप यू कैन डिराइव दिस फैक्ट दैट द स्तूपा वाज द सिंबल ऑफ महापरिनिर्वाणा. बर्थ of Buddha is related to lotus. Now there is a name Mahabhinishkarma. Now this is known as the great departure, when Buddha left home at the age of 29, and this is symbolized by horse. Okay,
Now the enlightenment का symbol was the Bodhi tree under which he attained this enlightenment. So the Bodhi tree was the symbol of enlightenment. Okay, and the first sermon was wheel. इसका symbol wheel था. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब आपको कोई इशू नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में. ठीक है. Now Bodh Gaya is attained where he attained enlightenment. Sarnath where he gave his first sermon, and Kushinagar is where he died. Next is the event of Buddha's renunciation of whom is known as, मतलब कि in other words this is the great departure. Now this is Mahabhinishkarmana. ठीक है, this is also known as the great departure and the symbol of it was horse. In फिर धर्म चक्र प्रवर्तन है. The symbol was wheel and it was the first sermon. Where did he give his first sermon? In Sarnath. Next is the Mahaparinirvana, which is the death of Buddha, and ये कहाँ पे हुआ था? Kushinagar. And who ruled Kushinagar at that time? The Malla Republic used to rule. Now Sambodhi is the enlightenment, which is denoted by the symbol of Bodhi tree. ओके, सो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो यू कैन कमेंट करके आप पूछ सकते हैं योर डाउट्स, और यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी ऑन द टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव एनी डाउट्स. नाउ महापरिनिर्वाण इज डेथ, धर्मचक्र प्रवर्तन इज द फर्स्ट sermon, संबोधि इज द एनलाइटमेंट. सो लेट अस नाउ मूव टू द यस. नाउ दिस इज अ प्रेटी मच स्टैटिक पॉइंट, सो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. नाउ हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? नाउ देयर वेयर टू टीचर्स. ओके, मैं बताता हूँ आपको कैसे. नाउ द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा वाज अलारा कलामा and he was a Sankhya philosopher. This is an important fact that you need to know. Now the another important thing was Udraka Ramputra. Now he was also the teacher of Buddha, but first teacher की अगर हम बात करें, so the first teacher was Alara Kalama and he was a Sankhya philosopher. Okay. Now Mahakasap, he presided over the बुद्धिस्ट काउंसिल. एज वी नो दैट, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे. इन टोटलिटी देयर वेयर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है, कहाँ पे? राजगीर में. सेकेंड वन वॉज एट वैशाली, अभी डिटेल में भी बात करते हैं इसके बारे में. थर्ड वन वॉज एट पाटलिपुत्रा एंड द फोर्थ वन वॉज एट कुंदलवन इन कश्मीर. सो महाकश्यप प्रिसाइडेड वन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल एंड आनंद वॉज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा. ओके, सो फर्स्ट टीचर के बारे में बात हुई है यहाँ पे. सो ही वॉज अलारा कलामा. ठीक है, नाउ हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलारा कलामा, अ सांख्य फिलोसफर फ्रॉम whom he learned the technique of meditation. अदर ऑप्शंस की बात करें तो उद्रका रामपुत्र वॉज हिज नेक्स्ट टीचर. महाकश्यप प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी. एंड हु वॉज द रूलर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? इट वॉज अजातशत्रु. एंड अजातशत्रु बिलोंग फ्रॉम विच डायनेस्टी? तो हरियंका डायनेस्टी. ये सारा कुछ मैंने करवा दिया पहले ही. सो अगर आपको जानना है, यू नीड टू नो अबाउट दिस, तो महाजनपद वाला चैप्टर है इसके पहले, वो आप बिल्कुल से देख लेना पहले. ठीक है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एंड आनंद वॉज द फर्स्ट डिसाइपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वॉट डज द सिंबल हॉर्स रिप्रेजेंट इन बुद्धास लाइफ? सो मैंने बताया था आपको, द हॉर्स वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रेट डिपार्चर. ओके, सो इट वॉज रिलेटेड टू renunciation of the home or the great departure, and it was symbolized by horse. Birth was related with lotus and bull. Enlightenment was related with the bodhi tree, and the first sermon was related with the wheel. Okay, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट में सारा कुछ ऑलरेडी वैसे भी दिया हुआ है, एंड एडिशनल फैक्ट्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं. नाउ अब क्वेश्चन आता है बुद्धिस्ट काउंसिल का. ओके, सो यहाँ पे मेरे को आपके 5 मिनट चाहिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू इन प्रिटी मच डिटेल. टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई. ओके, नाउ एक एक करके आई एम गोइंग टू गिव यू
इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। एंड इस 2 या 3 मिनट के पार्ट को अगर आप सुनोगे तो 1 मार्क्स आप एश्योर कर लोगे अपने एग्जाम में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, इट वाज प्रिसाइडेड by some monk or renowned personality of that time, and there was a ruler under which this Buddhist council happened. So the first Buddhist council, it took place at the Sataparani caves. Now where are the Sataparani caves? This is in Rajgir, which is situated in the present day Bihar. Now it was presided by Mahakasap. Now Mahakasap was a monk, and the ruler who ruled at this time was Ajat Now, Ajat के बारे में I have already taught you about many things, that he belonged to the Haryanka dynasty. He killed his father Bimbisar to get on the throne. All of those information I have already covered in the Mahajanpada chapter. Okay. Now, the first Buddhist council, it was presided over by Mahakashyap. The ruler was Ajat and he belonged to the Haryanka dynasty. Now, another important fact that you need to know, that what was the aim? Okay, what happened? What was the outcome of the first Buddhist council? So basically, the Buddhist literature were divided into 3 important texts. So the division of the teachings of Buddha into these 3 पिताकाज हैपेंड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, वो 3 पिताका कौन सी थी? सबसे पहले तो है विनय पिताका, सेकेंड वाज सुत्त पिताका, एंड द थर्ड वन वाज अभिधम्म पिताका। Now, Abhidhamma Pitaka was related to the philosophical doctrines of Buddhism. Sutta Pitaka was related to the monastic codes or the rules that the monks need to follow, and Vinay Pitaka, it considered information about the rules and regulations of the Buddhism. Sutta Pitaka में monastic codes थे that the monks have to follow, and Abhidhamma Pitaka was the philosophical derivation of the Buddhism. Now, second Buddhist council की मैं बात करूं, so it was held in Vaishali. Vaishali is also situated in the present day Bihar. Now, it was presided over by Sabakami. It was presided over by Sabakami, and the ruler at that time was Kalashoka. Now, this Kalashoka, he belongs to the Shishunga dynasty. Now, Shishunga dynasty ruled after the Haryanka dynasty. ये भी आपको मैंने महाजनपदा के चैप्टर में बता दिया है। What was the outcome of the second Buddhist council? So the outcome was बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। Now स्प्लिट कौन कौन से 2 ऑर्डर थे? The first order was the Sthavirvadins, which was related to the Theravada sect. ओके, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब था, जस्ट अ सेकेंड। एंड द सेकेंड वाज महासंगिकास। नो, स्थविरवादिन्स जो थे, ये जो सेक्ट था, दिस वांटेड टू प्रिजर्व द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन द ओरिजिनल स्पिरिट। जैसे बुद्धा ने बताया है उस ओरिजिनल स्पिरिट में वो उनके टेक्स्ट को प्रिजर्व करना चाहते थे, वो उनके टीचिंग्स को प्रिजर्व करना चाहते थे। ओके, नाउ महासंगिकास कौन थे? दीज वेयर द मोर लिबरल सॉर्ट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, महासंगिका, महा मतलब क्या होता है? ग्रेट, एंड संघ का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। सो दे वेयर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट कम्युनिटी। एंड जो महासंगिकास थे, दे यूज टू इंटरप्रेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मोर लिबरली। सो इनका जो डिवीजन था, ये स्प्लिट जो था, इट हैपेंड इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, बट जो काउंसिल का आउटकम था, इन्होंने महासंगिका के जो डेरिवेशन था या महासंगिका बुद्धिस्ट जो कैनोनिकल था, इनको रिजेक्ट कर दिया था। स्थविरवाद वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, दिस हैपेंड इन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ से बहुत सारे यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आए हैं एंड अदर स्टेट पीएससी से भी क्वेश्चन आए हैं। नाउ दिस हैपेंड इन द पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र भी बिहार में है। नाउ अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, so the president was Mogliput was the president, and who was the ruler at that time? So Ashoka was the ruler and he belonged to the modern empire. इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। And a major outcome of the third Buddhist council was
codification of the Abhidhamma Pitakas. Codification of Abhidhamma Pitaka. Now most of the Pitakas that were written, जिन जो कि विनय पिताका, सुत पिताका एंड अभिधम पिताका, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा, all of these were written in the Pali language. Okay. Now the codification of Abhidhamma Pitaka, this happened in the third Buddhist council. Next and the last Buddhist council was the fourth one. Now the ruler at that time was Kanishka, and this Kanishka belonged to the Kushana Empire. Okay. Now who was the president? So Vasumitra, under the presidency of Vasumitra, this Buddhist council took place. And what was the outcome of this? Outcome था division of the Buddhism into the Mahayana and Hinayana. महायान एंड हिनायान, इसके बारे में भी आगे मैंने वीडियो में बताया है, बट ब्रीफली अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सो दिस महायान वाज आल्सो नोन एज द ग्रेटर व्हीकल and Hinayan was known as the lesser vehicle. Now what happened in Mahayan was कि कम्युनिटी का बोधिसत्व का यहाँ पे कंसेप्ट था. मतलब कि सिर्फ एक इंसान को क्या कहते हैं, बोधिसत्व नहीं पाना चाहिए. दे शुड बिलीव दैट जितने लोग कम्युनिटी बेस्ड था, ये इट वाज वेरी मच वाइड. बट हिनायान सेक्ट दे बिलीव्ड दैट कि इंडिविजुअल liberation is very much essential. This was the basic difference. Okay. Now idol worship वाला भी पॉइंट था, वो मैं बता दूंगा आपको. ठीक है. अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंट्रिक अगर मैंने बता दिया ना तो चीज़ें स्किप कर सकती हैं दिमाग से. सो अभी हमने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन देख लिया. लेट अस सी द क्वेश्चंस, एंड जैसे आगे क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वेयर वाज इट हेल्ड? वेरी प्रिटी मच इजी क्वेश्चन है. कहाँ हेल्ड हुआ था? ये राजगीर में हेल्ड हुआ था. सो आंसर इज सी. ओके. नाउ रिवाइज कर लेते हैं. वैशाली में हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. द रूलर वाज काल अशोका. ही बिलोंग टू द शिशुंगा डायनेस्टी एंड द प्रेसिडेंट वाज सबाकमी. पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था एंड अशोका वाज द रूलर एंड द प्रेसिडेंट वाज मोगलेपुत्र. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? कोडिफिकेशन ऑफ द अभिधम्म पिताका. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिस क्वेश्चन का आंसर भी है. रूलर वाज अजातशत्रु, महाकश्यप वाज द प्रेसिडेंट. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? देयर वाज द रूलर कनिष्क, प्रेसिडेंट वाज वासुमित्रा एंड बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू द महायान एंड हिनायान सेक्ट. क्लियर है? यहाँ पे सारा कुछ मेंशन्ड है. सो लेट अस नाउ प्रोसीड. विच पिताका कंटेन्स द मोनेस्टिक कोड? अब मोनेस्टिक कोड कौन से पिताका में था? तो अब तो ये समझ आ जाना चाहिए. सुत्त पिताका में बुद्धा सेइंग्स थी, बुद्धा ने रूल्स बताए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी. विनय पिताका में मोनेस्टिक कोड वॉज देयर. अभिधम्म पिताका में बुद्धाज फिलॉसफी वॉज देयर एंड जताकास वेयर रिलेटेड टू द बुद्धाज प्रीवियस बर्थ. बुद्धाज के प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज थी ना, इन पे जो था जताकास का फोकस था. Now ये सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, all of these three were compiled and the Buddhist teachings डिवाइड हुई थी इन 3 पार्ट में इन दी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. ये ध्यान में रखना, जो कि राजगीर में हुई थी. अंडरस्टूड है? अभिधम्म पिताका रिलीजियस डिस्कोर्सेस एंड फिलोसफी, जताकास आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धा's प्रीवियस बर्थ. ओके. नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? प्रिटी मच इजी, वासुमित्रा. यहीं पे मैं ना एक बार आप वीडियो देखोगे, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चंस को ऐसे बनाया है कि सारा कुछ आपका एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा. महाकश्यप was the president of the first Buddhist council. Who was the president? Who was the ruler at that time? अजातशत्रु. आउटकम क्या था? जो 3 अभी हमने पिताकास देखे, इनका डिवीजन हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में. मोगलिपुत्तिस was the president of थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी. द रूलर वॉज अशोका. एंड अगर मैं बात करूँ आउटकम की, तो आउटकम क्या था? आउटकम था कि अभिधम्म पिताका को कोडिफाई किया गया था. नेक्स्ट इज वासुमित्र.
which is the answer to the question. He was the president of the fourth Buddhist council. Who was the ruler at that time? The ruler was Kanishka, and Kanishka was a Kushana ruler. And fourth Buddhist council में क्या हुआ था? The Buddhism was divided into the Mahayana and the Hinayana sect. सभा कमी एक बचे, सभा कमी कब थे? तो सभा कमी हमारे जो है वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थे, जिसमें कि द रूलर वाज कालाशोक ऑफ शिशुंगा डायनेस्टी एंड इट वाज हेल्ड इन वैशाली. ओके, क्लियर है? नाउ द त्रिपिटकास आर रिटन इन विच लैंग्वेज? अब देखना, यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है. एक तो आपको त्रिपिटकास देखने को मिलेगा एंड होगा त्रिरत्न. ओके, now Tripitakas are the three texts about which we have already talked. That is the Sutta Pitaka, Vinay Pitaka and Abhidhamma Pitaka. Okay, so these are the three Pitakas. अब त्रिरत्न या त्रिरत्न इन द बुद्धिज्म आर, सबसे पहले तो बुद्धा, देन देयर इज संघ जो बुद्धा ने बनाया था फॉर द टीचिंग बुद्धिज्म, एंड द थर्ड वन इज धम्म. So the Buddha, Sangha and Dhamma, these three constitute the three Ratna of Buddhism, and three Pitakas जो थे, these are the three canonical texts of the Buddhism. Okay. Now संस्कृत जो था वो emphasis था महायान बुद्धिज्म में. अभी मैंने बताया त्रिपिटकास दिस solely focused on the पाली, एंड जो प्राकृत एंड अर्धमगधी थी, मोस्टली जो जैना टेक्स्ट थे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला है जैनिज्म, उस पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्राकृत एंड अर्धमगधी में जैना टेक्स्ट मेजोरिटी बेसिस पे लिखे होते थे. नाउ यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्राकृत वाज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल हमारा प्राकृत होता था, ठीक है. नाउ विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप? अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है ना. इंपॉर्टेंट किन के लिए है? अब तो खैर एसएससी जैसी एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, एंड यूपीएससी के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पूछते ही हैं और इतने ही पार्ट्स में से क्वेश्चन आएगा, एलिमिनेट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे तीन सेक्ट्स होते थे बुद्धिज्म में. सबसे पहला तो महायान एंड हिनायान. एंड जैसे ही मैंने महायान एंड हिनायान सेक्ट के बारे में बात किया, यू शुड इंस्टेंटली रिमेंबर दैट इनका डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था ड्यूरिंग कनिष्क. नाउ ये मैंने आपको बताया था, महायान वॉज नोन एज द ग्रेटर व्हील व्हीकल, और वेयर एज द हिनायान वॉज नोन एज द लेसर व्हीकल. ऑन द अदर हैंड, महायान वॉज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन संस्कृत लैंग्वेज, हिनायान वॉज फोकस्ड ऑन द पाली. महायान के जो पीपल थे, दे यूज्ड टू बिलीव in idol worship, but Hinayan they did not worship the idols of Buddha. महायान से बेसिकली दो सबसेक्ट निकले थे, यानी जो सबसेक्ट्स है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, 2-3 बार वो पूछ भी चुके हैं, ठीक है. नाउ द टू सबसेक्ट्स ऑफ महायान वेयर द मध्यमिकास, ठीक है. देन इज द योगाचारा. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चैत्यकास and Purvasila. These are some of the subsects of the Mahayana sect of Buddhism, and this Mahayana sect of Buddhism was led by Mahasanghikas. ठीक है. Now Hinayana sect, हिनायान सेक्ट को लीड किया था स्थविरवादिन्स ने, जो मैंने आपको पहले बताया सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था. तो स्थविरवादिन्स दे लेड द हिनायान सेक्ट, एंड इनके जो मैं सबसेक्ट्स की बात करूं तो वह भाषिका, स्वतंत्रिका, ठीक है, एंड सम्मतियाज. दीज वेयर द सबसेक्ट्स ऑफ द हिनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. ओके. नाउ इंडिविजुअल डेरिवेशन थी हिनायान सेक्ट की, कि इंडिविजुअल सेलिब्रेशन इज ऑफ utmost importance as per the Hinayan sect. Whereas Bodhisattva through helping others, this was a central theme of the Mahayana sect of Buddhism. Later times में, as the time goes on, एक third sect also came into existence which was known as the Vajrayana sect. Now this Vajrayana sect was the also known as the Tantric Buddhism, जिसमें magical powers and तंत्र पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था. एंड जो चीफ्स होते थे ना इस वज्रयान सेक्ट के, दीज वेयर नोन एज तारास. ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे. सो
ये तीनों इंफॉर्मेशन और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी पर्सपेक्टिव। नो, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्ड इन द आइडल वर्शिप? अब तो ये क्वेश्चन pretty much सिंपल हो गया। दीज वर द महायान सेक्ट। ओके, द महायान ग्रेटर vehicle follower believe in the idol worship and heavenliness of Buddha. The Hinayan does not believe in idol worship. The Theravada and Sthavirvadin are the older schools that were associated with the Hinayana Buddhism. Okay, ये हो गया यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे आ गया बोधिसत्व। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थीम एंड यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की ये फेवरेट थीम है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो मैं आपको उतना ही पार्ट कवर करवा रहा हूँ जहाँ से यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक वाले तो बिल्कुल आपसे सॉल्व होंगे ही होंगे। अगर आप इस लेवल पे भी इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, जो कि बस आपको फैक्ट्स को समझना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा एंशियंट का। ओके, सो देर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टडी एंशियंट हिस्ट्री एंड देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टडी ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, रटने पे जाओगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जब आप लॉजिक से चीज़ों को समझोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली, आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पाओगे। ओके, सो बोधिसत्व के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली 6 या 5 टाइप्स ऑफ बोधिसत्व इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 होते हैं, मैंने 5 लिखे हैं क्योंकि अगर ये 5 पता होंगे आपको तो 6 जानने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हो आप। सबसे पहला तो वज्रपानी। नाउ व्हाट डिड वज्रपानी स्टैंड फॉर? दैट बुद्धा हु होल्ड्स अ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट वाज अवलोकितेश्वरा। ही वाज आल्सो नोन एज पद्मपानी और द लोटस बियरर एंड इट इज बिलीव दैट ही इज वॉचिंग डाउन। ठीक है, जो पोर्ट्रेट था बुद्धा का कि ही इज वॉचिंग डाउन, ही इज द लोटस बियरर ऑल्सो नोन एज पद्मपानी एंड दिस इज ऑल्सो अ यूपीएससी पीवाईक्यू। Next is Manjushri. Manjushri is the stimulator of understanding, and in this thing, he describes the 10 paramitas. Fourth is the Maitreya, that is the future Buddha. This is also a UPSC PYQ. Okay. Next one is Amitabh, that is the Buddha of heaven. तो ये पांचों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप करेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। No, this is what is the meaning of Vajrapani, a bodhisattva. This is holder of a thunderbolt. The lotus bearer, यहीं पे देख लो, is Avalokiteshvara, that is Padmapani. The future Buddha is Maitri and the guardian of purgatories is Manjushri. ठीक है, सॉरी, मंजुश्री नहीं, दिस इज क्षितिगृहा एंड दिस इज द 6th bodhisattva, the guardian of purgatories. Next is something about the architecture wala part. Which university was founded by the Pala ruler Dharmapal? So Vikramshila University was founded by Dharmapal. Nalanda University, this was founded by Kumar Guptavan. He was the founder of Gupta Empire. Now Vallabhi was founded by Bhattaraka, who was also the Maitrika ruler, and Takshashila was situated in the modern day northwestern part of इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान के साइड पे है ये तक्षशिला। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, नालंदा के बारे में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो तो, विक्रमशिला बाय धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी एंड नालंदा बाय कुमारगुप्त वन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट इज डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो इन विच पार्ट ऑफ ट्रुथ। अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द बुद्धिस्ट philosophy. So let me discuss about the Buddhist philosophy first. Next question is, desire is the root cause of sorrow is the part of which truth? So basically, let me tell you about this. So in with Buddhism, there are 4 basic truth or 4 noble truth. So what are these truth? The first one is the world is full of sorrow. Okay. The second is desire is the root cause of all the sorrows. सबसे पहले तो है the world is full of sorrows. Second one is desire is the root cause of sorrow. Third is again about desire. That desire, if the desire is controlled, then all the sorrows can be removed.
Fourth is desire. It can be removed by following the Ashtangic path. Ashtangic path, which is also known as the eight-folded path. Now, eight-folded path में क्या क्या है? Now, eight-folded path consists of right understanding, right speech, right concentration, right effort, right action, right thought, right mindfulness. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एक और था यहाँ पे, यस, right livelihood. These are the eight-folded path. No, let me make you revise this again. Now there are four noble truths. The first one is the world is full of sorrows. Desire is the root cause of sorrows. Now the third is desire, if conquered, then all the sorrows can be removed. The fourth one is desire, it can be removed through the Ashtangic path or the eight-folded path. The eight-folded path consists of right understanding, right speech, right concentration, right effort, right action, right thought, right mindfulness and right livelihood. Okay? समझ आ गया? Now, यहाँ पे desire is the root cause of sorrow is which part of the which truth? Now first हमारा कौन सा truth था? The world is full of sorrows. Second, desire is the root cause of sorrow. Third is desired, if conquered, can remove all the sorrows. And fourth truth was desire can be removed by following the eight-folded path. So हमारा desire as a root cause of sorrow, it is the second noble truth. Now त्रिरत्न के बारे में भी you need to know. त्रिरत्न मैंने आपको पहले बता दिया है. Tripitakas are the three canonical texts of Buddhism, that is Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. On the other hand, three Ratnas is Buddha, Dhamma and Sangha. ठीक है, धर्म नहीं है ये, धर्म बोलो या धम्म बोलो, both of these are same. ठीक है, अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. Next question is who is known as the future Buddha? This I have already told you. Who is the future Buddha? It is none other than Maitreya. ठीक है. Manjushri is the stimulator of understanding. Amitabh is the Buddha of heaven. This I have already told you. जो all the five हमारे वो थे ना, 6 bodhisattvas थे. All of this we have already discussed. Next is the Buddhist text. Milind Pano is a dialogue between Nagasena and which Indo-Greek ruler? So it is a dialogue between Nagasena and the Indo-Greek ruler Menander. ठीक है. So Milind Pano, which is also known as the Questions of Milind, is a dialogue between Menander and the Buddhist saint Nagasena. Now Demetrius, Eucratides, Heliodorus were the other Greek figures, but these are not associated with what the question has asked. Now, next is about which doctrine is known as Shangbhanga Vada. Now this is pretty much important thing. Okay. Now देखो, बेसिकली दो यहाँ पे बुद्धा की फिलॉसफी थी. मैं ये आपको बता देता हूँ, ये भी समझ में आ जाएगा आपको. एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी मच फ्रीक्वेंटली. नाउ द फर्स्ट वन इसी के बारे में बताता हूँ. दिस इज द थ्योरी ऑफ मोमेंटेरीनेस, दैट इज द शंगभंगवाद. ठीक है. नाउ दिस व्हाट डज दिस थ्योरी टेल्स? दिस थ्योरी टेल्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ कोलैबोरेशन और इट इज अ सम of perishable qualities. According to this theory, the things that can produce effect exist. ठीक है. While whatever cannot produce an effect has no existence. मतलब momentariness की थ्योरी है. मतलब क्या कि world is nothing but a collection or a sum of the perishable qualities. And जो भी qualities जो हैं वो effect produce करती हैं. ठीक है.
बस उन्हीं की एग्जिस्टेंस है, एंड दोज हु कैन नॉट, द थिंग्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट हैज नो एग्जिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड अनदर थ्योरी है द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और नोन एज द प्रतीत्य समुत्पाद। And this Pratitya Samutpad is the central Buddhist theory. It is the central Buddhist philosophy. It tells us that in the empirical world that is dominated by the intellect, everything is relative. It means कि हर चीज जो है वो डिपेंडेंट है, कंडीशनली एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे एनीथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू बर्थ इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब कि रिलेशन है हर चीज का, एवरीथिंग इज रिलेटिव एंड देर इज कंडीशनल डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ। ओके, बर्थ एंड डेथ का साइकिल कंप्लीट हो गया तो अल्टीमेटली जो वो चीज है दैट बिकम्स इम्परमानेंट। नाउ थ्योरीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो, शंग भंगवाद दैट इज द थ्योरी ऑफ मोमेंटेरीनेस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिपेंडेंट ओरिजिनेशन दैट इज द प्रतीत्य समुत्पाद। दीज आर द बेसिक टू फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज्म। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये प्रतीत्य समुत्पाद किन से रिलेटेड है। सो ये बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज तो मैंने बस बता दी आपको so that you get a reference. So let's now move to the next question. So this has ended. ठीक है, बुद्धिज्म का चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके, सो लेट अस नाउ एंड दिस वीडियो हियर ओनली। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।